هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک جو ہے وہ ہماری تقریباً 33 کلاسز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور آج جو ہے ہماری 34ویں کلاس ہوگی۔ اور اب تک جو ان کلاسز میں جو ہم سیکھ چکے ہیں، تقریباً اس سبق نمبر 9 میں 7 قواعد جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، اس کا اجرا بھی کر چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اس میں جو اس کے متعلق جو مشق جو دی گئی ہیں، ہم ان مشقوں کا اندر جو ایک ایک جملہ ہے، اس ایک ایک جملے کی بھی پوری ترکیب الحمدللہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ تو امید ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو آج کی جو کلاس ہے، آج کی کلاس میں ہم لوگ کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی قاعدہ نمبر 8۔ تو دیکھتے ہیں کہ قاعدہ نمبر 8 کیا ہے۔ دیکھیں، قاعدہ نمبر 8 ہے، پہلے مرکب اضافی اور اس کے بعد ایک اسم نکرہ ہو تو آپ ترکیب کس طرح سے کریں گے؟ یہ جو ہے وہ قاعدہ اسی کے متعلق ہے کہ پہلے جو ہے وہ آپ کے پاس مرکب اضافی ہو اور پھر اس کے بعد ایک اسم نکرہ آ جائے، تو ترکیب کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جو ہے پہلے مرکب کو مبتدا بنا دیں گے، اور جو اس کے بعد جو نکرہ ہوگا آپ بنا دیں گے اس کو خبر۔ جیسے کہ کتاب زید سالم، یہ اس کی مثال یہاں پر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اگر پہلے مرکب نہ ہو بلکہ پہلے معرفہ ہو اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا آ جائے، اس کے بعد مرکب اضافی آ جائے، تو اب ترکیب کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اب آپ معرفہ کو مبتدا بنا دیں گے، اور وہ جو مرکب ہے نا، مرکب اضافی جو اس کے بعد معرفہ کے بعد آیا ہے، آپ نے اس مرکب اضافی کو بنا دینا ہے خبر۔ اور آپ جو ہے جیسے کہ زیدن یہ معرفہ ہے، اخو بکرین یہ مرکب اضافی ہے، تو آپ نے کیا کیا، اس کو معرفہ کو مبتدا بنا دیا، اور اخو بکرین یہ جو مرکب اضافی ہے آپ نے اس کو بنا دیا خبر۔ اور اب ایک اور صورت بتا رہے ہیں اسی قاعدے میں کہ اس کے برعکس بھی جو ہے نا وہ جائز ہے۔ جیسے یہاں پہ زیدن ہے، ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ معرفہ ہے اور پھر اس کے بعد مرکب ہے، اور اگر ایسا ہو کہ پہلے مرکب ہو اس کے بعد معرفہ ہو تو کیا ہوگا؟ کہا کہ بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اب آپ ایسا کریں کہ اس مرکب کو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں اور اس معرفہ کو آپ کیا بنا سکتے ہیں؟ آپ بنا سکتے ہیں خبر۔ لیکن ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے سمجھنے کا؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایک جز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے میں نے اس کو 3 اجزاء میں 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا والا حصہ تو یہ ہے کہ پہلے مرکب اضافی ہو اور اس کے بعد اس میں نکرہ آ جائے تو ترکیب کس طرح سے ہوگی، اس کو ہم لوگ سمجھیں گے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر پہلے معرفہ ہو اور اس کے بعد اگر اس میں ایک مرکب آ جائے تو پھر ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اور پھر یہ جو آخری والی یہ جو عبارت ہے کہ اس کا برعکس بھی جائز ہے، اس والی صورت کا برعکس بھی جائز ہے، تو ان تینوں صورتوں کے اوپر بات کریں گے ایک ایک کر کے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پہلے مرکب اضافی ہو۔ یہ والی مثال لے لیتے ہیں، کتاب زید سالم۔ اچھا، اب ہم یہ غور کرتے ہیں اس کی ترکیب کرتے وقت کہ یہ جو کتابو ہے یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہ ہے نکرہ،
क्योंकि इसमें मार्फा की कोई अलामत जो है वो मौजूद नहीं है। अभी सिर्फ मुफरत की मैं बात कर रहा हूँ कि अकेले की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मार्फा की कोई अलामत मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये क्या है, ये नकिरा है, ना ही ये मुअर्रफ बिल लाम है, ना ही ये इसमें इशारा है, ना ही इसमें ज़मीर है, और ना ही इसमें मौसूला है, ना ही इसमें अलम। तो लिहाजा ये क्या हो गया, ये हो गया नकिरा। अच्छा, फिर उसके बाद अगर इस ज़ैदिन के ऊपर अगर हम बात करें तो ये ज़ैदिन जो है ये मार्फा है या फिर नकिरा, तो आप ये कहेंगे ये जो ज़ैदिन है ये वाला, ये जो ज़ैदिन है ये है मार्फा। मेरा सवाल ये होगा कि मार्फा क्यों है, तो आपका जवाब ये होगा कि इस वजह से मार्फा है क्योंकि ये एक खास नाम है, और जो खास नाम होता है वो होता है इसमें अलम, और जो इसमें अलम होता है वो होता है मार्फा। तो इस वजह से ये मार्फा है। क्यों है, क्योंकि इसमें अलम, ये भी मैं बात लिख देता हूँ यहाँ पर, ये इसमें अलम होने की वजह से ये है मार्फा। ठीक है, अब जो है वो आप पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग इसके मुताबिक ही हम लोग बात कर लेते हैं। अब ये जो एक नकिरा और एक मार्फा, पहला नकिरा है और दूसरा आपको मिल गया है मार्फा। ये किताबु नकिरा है क्योंकि मार्फा की कोई अलामत नहीं, और ये जो ज़ैदिन है ये मार्फा है क्योंकि ये इसमें अलम है। अब आपको मिल गया है एक नकिरा और आपको मिल गया है एक मार्फा। तो अगर आपको शुरू में नकिरा मिल जाए और फिर मार्फा मिल जाए तो फिर तरकीब का तरीकाकार क्या होगा, तरकीब का तरीकाकार ये होगा कि आप जो है इस नकिरा को आप बना देंगे, क्या बना देंगे, मुदाफ। ठीक है, और ये जो मार्फा है इस मार्फा को आप बना देंगे क्या, मुदाफ मिलेगा तो फिर मुदाफ इलैह तलाश करेंगे, तो लिहाजा अब हम इसको बना देंगे क्या, मुदाफ इलैह। अब आपने मुदाफ बना दिया और इसको मुदाफ इलैह बना दिया। ठीक है, अब मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर क्या बनता है, इसको यूं ही करके मिला देते ना, तो मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर बनता है मुरक्कब इजाफी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मुरक्कब इजाफी। तो अब कायदे के ऊपर जाते हैं कि पहले मुरक्कब इजाफी हो। ठीक है, मुरक्कब इजाफी हम लोगों ने तैयार कर लिया है, लेकिन इसके ऊपर भी मैं आपको मजीद जो है वो हम लोग गुफ्तगू करते हैं। मुरक्कब इजाफी तैयार तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पर मजीद इसके ऊपर अगर हम रोशनी डालें तो ये जो किताबू है, इस किताबू के बा के ऊपर जो पेश आपको नजर आ रहा है ये हालत रफ़ाई में होने पर दलालत कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये हालत रफ़ाई में क्यों है, इस वजह से है क्योंकि ये बनेगा मुब्तदा, और मुब्तदा जो है वो हालत रफ़ाई में होता है, तो इस वजह से हालत रफ़ाई में है। दूसरा सवाल मेरा यहाँ पर ये होगा इसको समझने के लिए कि अच्छा ठीक है, आप ये बताएं कि आप इसके ऊपर तनवीन क्यों नहीं लेकर आए, यानी किताबुन क्यों नहीं है, ये किताबू क्यों नहीं है। तो इसका जवाब भी बहुत आसान है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये मुदाफ बन रहा है, और जो इसम मुदाफ वाक़े होता है तो मुदाफ पर कभी भी तनवीन नहीं आती है, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर तनवीन नहीं लेकर आया हूं। अब यहाँ पर ये जो ज़ैदिन है ये मार्फा है, ये तो हमारी बात हो गई, और ये मुदाफ इलैह है, ये भी हमारी बात हो गई। अब इसके नीचे जो दो जेर हैं, ये दो जेर क्यों हैं, इस वजह से क्योंकि ये मुदाफ इलैह है, और मुदाफ इलैह जो होता है वो हालत जर्री में होता है, और ये दो जेर जो है वो हालत जर्री पर होने पर दलालत कर रहे हैं, हालत जर्री में होने पर दलालत कर रहे हैं, तो लिहाजा इस वजह से इसके नीचे दो जेर आए। तो आपने इसको आपने मुरक्कब इजाफी क्यों बनाया, क्योंकि पहला नकीरा दूसरा मार्फा। इसका आसान जवाब तो यही है कि पहला नकीरा दूसरा मार्फा, तो इस वजह से मुरक्कब इजाफी बनाया। और दूसरा जवाब ये है कि आप तर्जुमा करके देखें, तो आप तर्जुमा करेंगे यहाँ से, क्योंकि मुदाफ इलैह में तर्जुमा जो है वो मुदाफ इलैह से उठाते हैं ना। तो आप पहले ज़ैद का तर्जुमा करें और फिर किताब का। तो आप तर्जुमा करते हैं ज़ैद की किताब, तो हमने ये भी जान रखा है
मुरक्कब इजाफी को पहचानने के सिलसिले में कि मुरक्कब इजाफी वो भी होता है जिसके तर्जुमे में का, की, के भी आता है, अक्सर का, की के आता है। तो इस एतबार से हमने इसको पहचान लिया, ये तो है मुरक्कब इजाफी। तो जनाब हमें मिल गया एक मुरक्कब इजाफी। अब इसके ऊपर बात करते हैं। इसको चलें थोड़ा सा मैं और मजीद आगे करके लिख देता हूं ताकि जो है वो आसानी हो जाए समझने में जब अलहदा से इसको करेंगे। अच्छा, ये जो सालिमुन है ये बरवज़्न फाइलुन है, एक बात तो ये। और दूसरा ये कि सबसे पहले तो इसके ऊपर ये बात कर रहे हैं हम कि ये मारफा है या फिर ये नकिरा। तो जवाब ये है कि ये नकिरा, क्योंकि इसमें मारफा की कोई अलामत मौजूद नहीं है, ना ही ये मुअर्रफ बिल्लाम है, ना ही इसमें इशारा है, ना ही इसमें ज़मीर है, तो ना ही इसमें मौसूला है। अल मुख्तसर ये कि इसमें मारफा की कोई अलामत मौजूद नहीं है, तो ये है नकिरा। अब कायदे के ऊपर दोबारा से जाकर देखते हैं, ठीक है। जब कायदे के ऊपर जब हम लोग दोबारा गए तो हमने देखा पहले मुरक्कब इजाफी हो, ठीक है भाई, मुरक्कब इजाफी तो बिल्कुल तैयार है, ठीक है, ये मुरक्कब इजाफी है, इसके ऊपर हम लोग बात भी कर चुके हैं। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं उसके बाद इसमें नकीरा हो, तो ये ना इसमें नकीरा भी है। तो अब तरकीब का तरीकाकार क्या होगा? अब तरकीब का तरीकाकार ये होगा कि आप जो है इस मुरक्कब को, ये देखें, मुरक्कब को आपने क्या बनाना है? आपने बनाना है मुब्तदा और आपने इसको बनाना है क्या? इस नकीरा को बनाना है, थोड़ा एरो ज्यादा कर देता हूं ताकि ये सीरीज में आ जाए। आपने इसको बनाना है खबर, और फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात का और खास ख्याल रखिएगा कि ये जो सालिमुन है ये है बरवज़्न फाइलुन, और फाइलुन जो है ये है इसमें फाइल का सीगा, इसमें फाइल के वजन पर है, और इसमें फाइल कायदा नंबर 4 में हमने पढ़ा था, इसमें फाइल, इसमें तब्दील, सिफत मुशब्बा, इसमें मफूला, इसमें मंसूब को हम डायरेक्ट खबर नहीं बनाते बल्कि हम पहले शिब जुमला बनाते हैं। तो लिहाजा अब हमें इसे पहले शिब जुमला बनाना होगा खबर बनाने के लिए। खबर तो बन गया, हमने समझा दिया कि खबर ही बनेगा, लेकिन खबर बनाने के लिए पहले शिब जुमला बनाना होगा, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो शिब जुमला बनाने के लिए हमें एक जमीर निकालनी होगी, उस जमीर को मुब्तदा की तरफ लौटाना होगा, ठीक है। और फिर वो जमीर इसमें फाइल का क्या बन जाएगी? फाइल, इसमें फाइल का फाइल, और फिर इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर क्या बन जाएगा? शिब जुमला इस्मिया, और फिर शिब जुमला इस्मिया होकर बन जाएगा खबर। तो फिर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज हमने ये क्लास नंबर 34 में हमने ये सीखा कि कायदा नंबर 8 का पहला वाला हिस्सा, सिर्फ यहां तक का हिस्सा हमने सीखा है, सिर्फ यहां तक का। और वो क्या है कि पहले मुरक्कब इजाफी हो और उसके बाद इसमें नकीरा हो, तो फिर आपने मुरक्कब को मुब्तदा बनाना है और नकीरा को आपने खबर बनाना है। अब जो अगली जो क्लास होगी तो उस क्लास में मैं बाकायदा तौर पर इस पूरे के पूरे जुमले की जो हमने अभी समझा है इसकी मैं आपको तरकीब करके बता दूंगा। फिर उसके बाद एक और क्लास होगी इस पर जिसमें हम लोग ये कायदे के दूसरे हिस्से को समझेंगे, और उसी क्लास में ही उम्मीद है कि कायदे के तीसरे हिस्से को भी समझ लेंगे, वरना ये कि अगली क्लास पर रख देंगे इसको। तो फिलहाल आप इसको समझ लें और इतना ज़हन में रखें कि हमने अभी कायदा नंबर 8 का पहला हिस्सा सीखा है और उसकी मिसाल को सीखा है। उसकी मिसाल के बारे में थोड़ी सी बातें हमने सीख ली हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर पूरी की पूरी उस मिसाल की तरकीब अभी नहीं की है। तो इंशाअल्लाह ताला वो भी हम लोग करेंगे अगली क्लास में। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।